Good evening, everyone. Good evening, Ji. Good evening. Welcome to this session by another session of learning Guruvar with Guruji. Again by PHF. And thank you to Dr. Liaquat for starting this and giving this opportunity. It is my pleasure to introduce today's speaker. She's my student when she was doing her BHMS, Dr. Pranita Patil from Virar, practicing homeopathy very passionately and practicing mind method since last 6 years. She's completed 10 years of her practice. She's very quick to learn, very sincere, and I have seen the way she thinks. It's very amazing. There are times when even I share cases and I speak to her about when we get stuck. So it's really nice to see the way she thinks. So it will be very nice to hear from her on her topic today. So without wasting any more time, let's welcome Dr. Pranita with a big round of applause. Everyone. Welcome, Pranita. Over to you. Welcome, Pranita. Welcome, Pranita. Thank you. Thank you. कट करा तेरे बाकी लोग बंद करा रहे आपला ऑडिओ अगो काय करतो मग चहा करून का सुवर्ण घुगे तुमचा माइक चालू होता मैं सबसे पहले बिफोर प्रणीता स्टार्ट्स आई वुड अगेन रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज कीप योर स्पीकर्स ऑन म्यूट एंड आल्सो योर वीडियोस प्लीज कीप इट शट लाइक तो अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो मोबाइल की स्क्रीन को टच करो, वहां पर एक म्यूट का पिक्चर ये आता है, उस पर टच करो, उसके बाजू में स्टॉप ऑडियो आता है, उसको एक बार क्लिक करो तो उस पर ऐसी आड़ी रेश आएंगी. प्लीज ये चीजों का ध्यान रखो, ठीक है? ओके प्रणीता बेटा, ओवर टू यू. Thank you. First of all, thank you so much, madam, for such a warm welcome. Thank you very much. No, I cannot start this session without paying gratitude to my mentor, my Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. If today I am taking this lecture, it's only because of sir, only because of sir's encouragement, sir's support. Today I am here. So thank you so much, sir, for always supporting me. Also, I would like to thank my another guru, Dr. Manisha Soni madam, for bringing me into the mind method. अगर मैडम ने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया होता माइंड मेथड में तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, मेरी ग्रोथ नहीं होती थी. सो थैंक यू सो मच मैडम. Also, I would like to thank sir once again, for initiating this webinar series. It's very wonderful, and it takes lots of efforts, to conduct lectures. And also free lectures. So thank you so much, sir, for giving so much time for students like us, and for giving us opportunity to take the lecture. And I like to thank my whole PHF team, all organizing committee. Everyone is taking so much of efforts to make each and every lecture successful. So, it is a teamwork. We all are working together, and because of teamwork, it is possible that we are, successfully going ahead with each successful lecture. So, thank you so much. So, today my topic is infertility in PCOD and thyroid cases. So recently in second lecture only we have learned about infertility. So, and also as we all know, sir will be taking sessions on first Thursday of every month. So sir will be covering infertility topic in detail, in depth. So without wasting much time, I will not talk about infertility. I will directly go to the cases. So I'll share my case with you, and then we can discuss about it. So here is one couple, वो आए. Actually ये केस है लॉकडाउन के टाइम की. तो तभी लॉकडाउन चल रहा था, तो I used to see patients in waiting room. तो काफी डिस्टेंस में ये केस लिया गया है. पेशेंट मेरे से काफी दूर बैठे हुए थे.
तो वो लोग आए क्लिनिक के अंदर और बैठ गए। फिर पहले मैं आपको वाइफ के बारे में बताऊंगी। वाइफ उसके बैग में से एक एक रिपोर्ट निकाल रही थी और हस्बैंड के हाथ में दे रही थी। प्रणीता एक सेकंड, मनोज अपना वीडियो बंद करो, मनोज प्लीज, बाकी सब लोग अपने अपने वीडियोस बंद करो। मनोज बेटा, मनोज दवे प्लीज स्टॉप योर वीडियो, आपका वीडियो दिख रहा है, मनोज आपका वीडियो बंद करो। हाँ बस, थैंक यू। ओके बेटा। ओके, सो पेशेंट आके बैठी और वो जो उसकी वाइफ थी वो एक एक रिपोर्ट निकाल के हस्बैंड के हाथ में दे रही थी। तो मैंने बोला बोलो, तो फिर भी उसका वही चल रहा था कि वो एक एक रिपोर्ट निकाल के हस्बैंड के हाथ में दे रही थी। मतलब मैंने जो पूछा उस पे उसका ध्यान नहीं था। और फिर उसने सब रिपोर्ट्स निकाल के हस्बैंड के हाथ में दिए। फिर उसकी थैली उसने रखी, फिर हस्बैंड से रिपोर्ट लिए उसने हाथ में और बोली कि एक्चुअली शी वाज रेफर्ड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड कॉलेज में। सो उसने उसका नाम बताया कि इन्होंने मुझे भेजा है, 5 साल हो गए शादी को बट अभी तक प्रेगनेंसी नहीं रही। तो ऐसे ओके। फिर वो आगे आई, मेरे टेबल तक आई और उसने रिपोर्ट्स दिखाए। ये उसका सोनोग्राफी किया हुआ था कि ये प्रीवियस रिपोर्ट है, ये रिसेंट रिपोर्ट है। तो मैंने बोला ठीक है आप रख दो रिपोर्ट्स, मैं देख लेती हूँ। फिर वो जाके अपनी जगह पे बैठ गई। तो मुझे रिपोर्ट्स बाद में देखने थे। मुझे जैसे सर हमेशा बताते हैं कि पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज पे हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो रिपोर्ट्स तो हम बाद में भी देख सकते हैं केस होने के बाद। तो मैंने उसको पूछा कि क्या लगता है आपको, आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है 5 साल से, तो क्या लगता है। एक्चुअली ये लोग काफी डॉक्टर्स के पास घूम के आए थे, काफी एलोपैथी ट्रीटमेंट किया था उन्होंने, फिर भी इसको कंसीव नहीं हो रहा था। तो इसने बोला कि 2 महीने से मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। तो हम लोग डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी करने के लिए। तो वहां पे समझ में आया कि गांठ है, मतलब इसको पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था। फिर ये बोला और फिर बोली मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ना मैं उठ सकती हूँ ना मैं बैठ सकती हूँ। मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने इसको पूछा कुछ पर्सनल सवाल पूछो आपसे। तो उसने बोला कि हाँ पूछो। तो मैंने बोला घर में कौन कौन है। तो उसने ऐसा हाथ दिखाया हस्बैंड की तरफ, बोली कि इनकी माँ और हम तीनों ही रहते हैं घर में। मैं बोला ओके ठीक है। तो बोला प्रेगनेंसी नहीं रहती तो उसकी वजह से क्या लगता है आपको, कुछ टेंशन आता है, कुछ सोचते हो आप इसके बारे में। तो बोली कि टेंशन नहीं, लेकिन हम डॉक्टर के पास गए थे, जैसे पीरियड्स नहीं आए तो बोली कि घर पे हमने टेस्ट करके देखा तो टेस्ट निगेटिव आया था। फिर हम डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर ने फिर टेस्ट करवाया तो वहां पे भी निगेटिव आया। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी सोनोग्राफी करो और इस तरीके से पता चला कि गांठ है करके। और बोली कि इनका डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला इनका मतलब उसके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, ट्रीटमेंट भी ली थी लेकिन वापस जब भी रिपोर्ट करवाया तब और कम हो चुका था। तो फिर अभी हस्बैंड ने बोला कि अभी हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम लोग ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने बोला कि आपको क्या लगता है इसकी वजह से। तो वो मुझे हंसने लगी, स्माइल करके इधर उधर देख के, हाथ थोड़ा ऐसा मूवमेंट्स उंगली का थोड़ा इधर उधर देखा उसने। तो मैंने बोला कि आप मुझे बता दो जो भी है, अगर आप अच्छे से बताओगे तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपने पूरा इंफॉर्मेशन दिया तो मुझे दवाई देने में आसानी होगी। तो फिर उसने बोला कि हम जब भी रिलेशन रखते हैं तो धातु मतलब स्पर्म बोली कि वो धातु रुकता नहीं है, वो निकल जाता है। तो उसके हस्बैंड को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। तो बोली वो डॉक्टर ने भी यही बताया था। मैंने बोला ठीक है, और कुछ बताना है। तो बोली कि हस्बैंड टेंशन देते हैं, इनको लगता है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। तो बोले कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम है कि मेरा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है।
मेरा कुछ नहीं, एक बच्चा होना चाहिए इतना लगता है। तो मैंने पूछा कि क्यों ऐसा लगता है, मतलब क्यों आपको बच्चा चाहिए, ये पूछना जरूरी है, इसके लिए मैं पूछती हूँ। एक्चुअली जैसे सर से सीखा है, तो सर ने सिखाया था इनिशियल लेक्चर्स में इनफर्टिलिटी के कि ये सवाल पूछने का पेशेंट को कि क्यों बच्चा चाहिए हमको, तो हमको पता चलता है ना वो उनका जो वाय रहता है, हाउ रहता है उस वक्त, उससे भी हमको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैंने उसको पूछा कि क्यों चाहिए आपको बच्चा, तो वो हंसने लगी वापस, उसका वो हैंड का मूवमेंट, वो स्माइल, इधर उधर देखना। तो फिर उसने कुछ बोलने से पहले ही हस्बैंड ने बोला कि 5 साल हो गए शादी को और अभी भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो लोग पूछते हैं, रिश्तेदार है बाकी कोई लोग है, तो वो पूछते हैं कि 5 साल हो गए तो अभी भी बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या लगता है, तो दोनों ने साथ में बोला कि बुरा लगता है। मैंने बोला ओके। तो हस्बैंड ने बोला कि पीछे शादी होके भी उनको बच्चे हो गए लेकिन हमको अभी तक बच्चा नहीं हुआ तो बुरा लगता है। तो उसी वक्त वाइफ ने बोला कि रीजन ही नहीं पता चल रहा है कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने बोला ठीक है। तो वाइफ ने बोला कि पीरियड्स भी रेगुलर आते हैं, और जैसे उसने वो सब बताया कि 2 महीने नहीं आते थे, तो ऐसा पहली बार हुआ था कि 2 महीने मुझे पीरियड्स नहीं आते थे, लेकिन वो यूएसजी में पता चला कि पीसीओडी है। तो मैंने बोला कि अगर अभी आपको ये पता चला है कि गांठ है, पीसीओडी है, तो इसकी वजह से कुछ टेंशन आता है, कुछ सोचते हो। तो बोली कि नहीं अभी कुछ नहीं लगता क्योंकि अभी पीरियड्स आ गए, पहले अभी लाइट लग रहा है, पहले पेट भारी 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 लगता था। मैंने बोला ठीक है। फिर वापस उसने मेरी वो फ्रेंड का नाम लिया और बोला, फिर उन्होंने बोला कि आपके पास जाओ। मैंने बोला ठीक है। तो फिर अब तक मेरी केस हो चुकी थी, फिर मैं उसको नाम और एज पूछ रही थी। तो उसने जब एज बताया बोली 23। तो फिर उसने खुद से ही बोला अगेन, वो शी स्माइल और शी सेड कि शादी ना हमारी जल्दी हो गई, क्योंकि इनके मतलब बोली हस्बैंड के तरफ हाथ दिखा के वापस, इनके माँ बाप ना एजेड थे, तो वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए हमारी शादी जल्दी हो गई। ठीक है। तो ये फीमेल का केस था, वो वाइफ का। तो अभी मैं दोनों भी केसेस साथ में बताती हूँ, हस्बैंड का भी, ताकि हम साथ में उसको एनालाइज कर पाए, समझ पाए वो केस को। तो अभी जब मैंने इमीडिएटली हस्बैंड का केस लिया, उसको बोला बोलो, तो कुछ मोमेंट्स तक ऐसा कुछ बोला नहीं, और फिर इधर उधर देख के उसने बोला कि धातु रुकता ही नहीं है और पानी निकल जाता है, तो मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला ओके ठीक है, तो क्या लगता है आपको इसकी वजह से, ये तकलीफ की वजह से आपको क्या लगता है। बोले मेरे में ही क्या प्रॉब्लम है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीना ट्रीटमेंट लिया, 6 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया उसने बोला, और 6 महीने बाद जब भी रिपोर्ट किया तो और भी उसका स्पर्म काउंट कम हुआ था। तो मैंने बोला ओके, तो उसकी वजह से क्या लगा आपको। तो बोले कि डॉक्टर बोलते हैं हीट की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन हीट का तो कुछ ऐसा संबंध ही नहीं है, मेरा काम तो हीट में है ही नहीं। तो मैंने पूछा क्या काम करते हो, तो बोला कि वो इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में है कुछ। वो बोला कि मेरा सिर्फ बॉक्स चेक करने का काम है, तो हीट से मेरा इतना संपर्क नहीं आता है। तो वाइफ बोली अपने में बीच में कि डॉक्टर ने बोला है कि हीट की वजह से हो रहा है ये। तो ये बोला कि हाँ मैं मानता हूँ कि हीट में काम होता है, लेकिन फैन कंटिन्यू चालू रहता है। एक्चुअली हमारे ऑफिस के बाजू में वो भट्टी है, मतलब जहाँ पे वो ईंट वगैरह बनाते हैं ना, जहाँ पे बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। तो वो इंडस्ट्री मतलब वो सब है बाजू में, तो इसके लिए वहां से हीट आती है, नहीं तो मेरा काम ऐसे हीट में नहीं है।
तो मैंने बोला ठीक है, कुछ पर्सनल सवाल पूछूं आपको? तो बोला हाँ। मैंने बोला आपको लगता है मतलब ये बच्चा होने के बाद आप अच्छे पिता बन सकते हैं, आप उसकी देखभाल कर सकते हैं? कि ये पूछना जरूरी है, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। तो अगेन ये भी जैसे सर बताते हैं कि ये पूछना जरूरी है। ये चीजें हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि कभी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है या और कुछ प्रॉब्लम रहता है, कोई चीज वो पर्सन को रोक रही है कि अरे बच्चा हो गया है तो मैं आगे कैसे संभालूंगा। तो ये सारी चीजें हमको, ये इंफॉर्मेशन हमको वहां से मिल सकती है। इसके लिए मैंने उसको पूछा कि ऐसा कुछ कोई चीज है जिसकी वजह से आप रोक रहे मतलब आपको कोई चीज रोकती है? तो बोला कि नहीं, मैं कर सकता हूँ देखभाल। तो अ, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। क्योंकि मैंने उसको पूछा था ना कुछ टेंशन नहीं, तो बोले मैं टेंशन नहीं लेता, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। जो लोग भी पूछते हैं ना उनको भी मैं बोलता हूँ जब होना रहेगा, जब नसीब में रहेगा तब होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। मैं इसको भी मतलब बोला, मैं वाइफ को भी बोलता हूँ कि टेंशन मत ले, जब होने वाला रहेगा तब होगा। तो मैंने पूछा आप खुद को ब्लेम करते हो? क्योंकि जैसे वो पहले बोल रहा था ना कि मेरी वजह से हो रहा है क्या, और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला कि नहीं, ये किसकी वजह से हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, और कुछ बताना चाहते हो? कुछ डर है, कुछ टेंशन है आपको? तो टेंशन वेंशन मैं नहीं लेता, जब होना रहेगा तब होगा। मतलब ठीक है। मैंने पूछा जब आपका रिपोर्ट आया था 6 महीने बाद, जब वापस स्पर्म काउंट और भी कम आया था, तब आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया? मतलब आपको क्या लगा था उस वक्त, आपकी मानसिकता क्या थी? तो उन्हें कि मुझे बुरा लगा था कि सॉरी, मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। बोले डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है। तो ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है कि किसकी वजह से ये हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बोला ठीक है। बोला डॉक्टर ने बोला था वापस रिपोर्ट करो, बट काम की वजह से मैं नहीं कर पाया रिपोर्ट। तो मतलब वही लास्ट रिपोर्ट। मतलब ठीक है, और कुछ बताना चाहते हो? तो बोला कि नहीं। सो दिस इज द केस ऑफ हस्बैंड वाइफ। So now we can discuss, you can share your understanding. Hello. हेलो, यू ऑल कैन अनम्यूट नाउ एंड यू कैन, जिसको कुछ बोलना है अपना फोन अनम्यूट करके बताइए, आपको कुछ समझ में आया इस केस में? तो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नींद से उठी? बोलिए। हेलो हेलो मैम, एक्चुअली ना मैंने जैसे आपने बताया ना कि सब लोग मेरे पीछे से आगे जा रहे हैं, मेरा मतलब उनका शादी हुआ है और इन्हीं को बच्चा नहीं हुआ है। एंड उन्होंने जो हैंड जेस्चर्स किया जैसे आपने बताया, एंड उन्होंने जो स्माइल किया, तो ऐसे लगा कि उनको बताने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। तो मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट ऐसा रूब्रिक लिया। और आप वाइफ की बात कर रही हो कि हस्बैंड की? क्योंकि ये जो था दोनों में था। बच्चे हो रहे, ये हस्बैंड का वर्जन था। ओह ओके। सो सो मैं कंफ्यूज हो गई। ओके, बट मेरा एक रूब्रिक जो वाइफ का जो था ना उसमें सिर्फ 2 ही रेमेडीज है। तो आई थिंक सो वाइफ इज स्टेफिस एग्रिया एंड द रूब्रिक इज डेल्यूजन, पीपल समवन इज बिहाइंड हिम कमिंग अप अहेड। सो क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने कहा कि सबका शादी मतलब शादी को 5 साल हुए हैं और इनको बच्चा क्यों चाहिए, बिकॉज सबको हुआ है, इनको नहीं हुआ है। लोग इनके पीछे से शादी होके उनको मतलब ये लेट है, उनके पीछे रह गए, मतलब ऐसा हस्बैंड को लगता है, वाइफ को नहीं। वाइफ ने ओके, सो फिर ये दोनों अच्छा, रूब्रिक्स हस्बैंड के हैं। सॉरी।
सॉरी, हस्बैंड क्या किया। रूबी बोला आपने? No problem. अपर आपने क्या हाँ, रूबी यस बोला? सर। मैंने कहा delusion people be someone is behind him coming up behind. पीपल में पीछे क्या? Delusion people behind him someone is coming up behind. Coming up behind. So what does that mean? मतलब लोग पीछे से, इनके पीछे से आगे निकल गए। लोग है या someone है? someone है। Someone someone है। someone मतलब कोई एक जो, कोई स्पेसिफिक इंसान, कोई या सर, स्पेसिफिक someone. यस सर, The word is someone. वन, So या it's one. कोई एक, है ना? यस सर। Religion, people, someone is coming up behind him. मतलब क्या? कोई उनके Coming पीछे up से behind मतलब आगे निकल गया। coming up behind him. नहीं नहीं, नहीं, निशु क्या मतलब आएगा इसका? Someone is coming up behind. Coming कोई up पीछे behind, से आ पीछे रहा से है आ ना, रहा है। let's say, आगे जा रहे हैं, आ रहा है। पीछे आ रहा है। ना इसका। प्रणीता मैडम को पूछा, मैडम को बोलने देगा। Sorry. हाँ, पीछे से कोई आ रहा है, कमिंग अप बिहाइंड हिम। हाँ, है ना? यस, अपर्णा समझ में आया बेटा? यस सर, कोई ऊपर आ रहा है पीछे से, ऐसे सर? आपने बेटा कोई तो पीछे से आ रहा है उसके पास। ओके सर, ओके सर। अब तेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पीछे पड़ रहे हैं, है ना? तो उसके लिए नहीं, रूबिक है मुझे ऐसे कि लगा कि, हाँ, ओके ओके सर, कंटिन्यू सर, सॉरी सर। मतलब ये लोग पीछे, मतलब ये पीछे पड़ रही है ना, हाँ, समझ? पीछे रह लोग गए ये आगे लोग। जा रहे हैं, ये पीछे पड़ रही है ना, उसका मतलब। तो यस I सर, don't know if this is applied in the case, but what you have understood, I am trying to explain is that delusion falling backwards. मतलब ये पीछे पड़ रही है, लोग आगे निकलते जा रहे हैं, ओह यस सर। है ना? Falling backward ना, it's like race ना, फॉलिंग people are बैकवर्ड। coming from behind and आगे जा रहे हैं, और ये पीछे पीछे जा रही है ना, नंबर में इसका पीछे पीछे जा रहा है। यस सर। What you have understood, I am just explaining. I don't know if it is applied to the case or not. I am not supposed to tell the analysis. I am just supposed to find the fault and explain. यस सर, फॉलिंग बैकवर्ड सही रहेगा। Okay. I don't know if it is Thank applied you, in the case. Okay. Yeah. यस Other. Yes. थैंक यू सर। कोई और कुछ बोल रहा था? हाँ बेटा। तो लोग, आप लोग टाइप करते हैं, उससे बेहतर है ना कि आप बोलो जो है। कम से कम आप लोग क्या होगा ना कि आपको बोलने की हिम्मत भी आएगी, हेलो है सर। ना? चैटिंग। हाँ बोलो सर, हस्बैंड के केस में मेरे को लगा सर, एक तो ग्रोपिंग कर रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, आप कारण ढूंढ रहा है, उसको कारण ही नहीं पता क्या है। ओके। और दूसरा, मैं टेंशन नहीं देता हूँ, मतलब लाइट रहता हूँ। ये दो रूब्रिक सर समझ में आए मेरे को। अच्छा, दूसरा रूब्रिक क्या सर? सर बोलो। एक तो मैं एक लाइट डिजायर और दूसरा ग्रोपिंग। अच्छा, टटोल रहा लाइट रह रहा है ये, मतलब Light हल्का रह रहा desire, है, ऐसा लग रहा है देखो, ये हल्का रह रहा है। लाइट डिजायर का मतलब क्या? हल्का रहना, कि हल्का रहने की कोशिश, हल्का हल्का होना पसंद कर रहा है। सर को टेंशन नहीं लाइट देता ना, डिजायर, लाइट रहता है। सुनो ना, लाइट का मतलब हल्का, डिजायर का मतलब चाहत, ठीक है सर। है ना? तो हल्का रहने की चाहत, है ना? ठीक है सर। ऐसा आप उसका मतलब ले रहे हो। लाइट डिजायर का मतलब वैसे नहीं लेते हैं, ये गलत है, आप जो ले रहे हो ना, ये बेलाडोना में अप्लाई करते हैं हम लोग कि हल्का रहता है वो, पर वो ऐसा मतलब उसका मत लीजिएगा, आप फेल जाओगे, आप यू विल फेल। हेलो सर। डॉक्टर सिंह, हेलो डॉक्टर सिंह, अंडरस्टूड ना? हाँ बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोल। हाँ सर, मुझे ऐसे लग रहा कि एंजाइटी डार्क इन लग रहा है उसको, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है।
फिकर लग रही है उसको, हाँ, हाँ। क्यों हो रहा है? और दूसरा मुझे एक अफेक्टेशन लगा सर उसका, उसको अंदर से कहीं ना कहीं तो टेंशन तो होगी, अगर उसका उसका धातु का अगर प्रॉब्लम है, पर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जबकि बता रहा है कि क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा हाँ, तो है ना? और ये क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है, ये वाइफ ने बोला या हस्बैंड ने बोला था? हस्बैंड दोनों ने भी बोला। दोनों ने भी बोले सर। दोनों ने बोला, अच्छा अच्छा, हम्म, हाँ। तो तो ये अफेक्टेशन तो ये दो रूब्रिक्स लग रहे हैं सर मुझे, एंजाइटी डार्क इन और अफेक्टेशन। अच्छा, ये प्रणीता मैडम बोलेगी। Yes, madam, you are About very the right. husband and what about the wife, बेटा? वाइफ का भी सर वो गेस्टर्स को क्या लेना समझ में नहीं आ रहा मुझे, जैसे वो हंस रही थी और मूवमेंट्स कर रही थी फिंगर के, वो मुझे कुछ समझ कैच नहीं हो रहा है वो, करके बता बेटा, लेकिन कैसे एंजाइटी डार्क इन तो है ही है। अच्छा, हमें तो फिक्र तो उसको हो रही है, हाँ, वाइफ को ना, और हस्बैंड को भी, दोनों को भी है। दोनों को। अच्छा, प्रणीता बोल बेटा। ठीक। तो गेस्टर Yes, madam, दोनों का भी मैंने एंजाइटी डार्क लिया था। So you are प्रणीता very गेस्टर right. करके बता, गेस्टर करके बता। Sorry. हाँ, वो ऐसा हंस रही थी और हाथ के ऐसे वो मूवमेंट्स कर रही थी, इधर उधर वो देख रही थी उस वक्त, एकदम हंस हंस के। तो एम्बेरसमेंट हो सकता है क्या? इधर उधर देखिए। एम्बैरेसमेंट है, बट उसके साथ और भी कुछ चीज है। अच्छा, हो सकता है क्या, वो पूछ रही हो सकता है क्या? आप एम्बेरसमेंट बताओ। मुझे लग रहा है मैम, पर एग्जैक्ट समझ नहीं है। ओके, ठीक है, एम्बैरेसमेंट है, बट एम्बैरेसमेंट से भी ज्यादा कुछ है। ऑकवर्ड है क्या प्रणीता? प्रणीता नहीं ऑकवर्ड, प्रणीता तो प्रणीता नहीं, हैंड मूवमेंट्स ऑफ पेशेंट। प्रणीता भी ऑकवर्ड ही बिहेव कर रही है। यस, ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड हो सकता है ना? Why awkward? वैशाली, हाँ बेटा, क्या? वैशाली, हाँ, ऑकवर्ड का अर्थ है, why you feeling ऑकवर्ड क्योंकि वो जैसे बताया कि हाथ ऐसे, हम लोग ऐसे ये हो जाते हैं ना, नर्वस जब होते इधर उधर देख रहे हैं, हैंड मूवमेंट्स अपने आप हो जाते हैं, तो जब झिझक आ जाती है एक जैसे, क्या आ जाती है? झिझक। झिझक। ऑकवर्ड, ओके, झिझक मतलब ये ना बेटा, टिमिडिटी। हाँ ठीक है, बट झिझक इज राइट वर्ड। ओके, ठीक है प्रणीता, ऑकवर्ड वाटते बेटा तुला? हाँ, तो क्या रुब्रिक लेंगी वैशु? टिमिडिटी, ऑकवर्ड। ओके, बाकी और बाकी लोग? हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ, अरे मैडम का लेक्चर है सर, सर नहीं, हेलो मैडम। आप गुरु है, हाँ आप वैशाली, क्या मांगेंगे? हाँ सर, वैशाली, लेडी का जैसे आने के बाद में जैसे वो ये दे रही थी, जैसे सब टेस्ट रिपोर्ट्स दे रही है, देन जैसे ये बोल रही कि मुझे उसने भेजा वगैरह ऐसे, एंड द वे शी वाज गेस्चरिंग, तो वो एक लग रहा था कि बोलूं या ना बोलूं, मीन्स उसको पता है कि प्रॉब्लम इज नॉट विथ मी, ज्यादा प्रॉब्लम हस्बैंड के साथ में है, बट उसको बोलना नहीं है इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड, ऐसा लग रहा था उसके गेस्चर्स के थ्रू। एंड देन इन बिटवीन ओनली उसने बोला कि मुझे कमर दर्द है, जैसे लाइक दैट, जो प्रॉब्लम है उसको छोड़ के उसने वो भी बोला। एंड एट द सेम टाइम एंग्जाइटी डार्क, जैसे मुझे पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। देयर वाज अ लॉट ऑफ वेग आंसरिंग इन हर, प्लस स्माइलिंग एंड प्लस वो ऑकवर्ड ओवरऑल। तो उसमें मुझे पल्स एंड सीसी का डीडीआर है, पल्सिटिला प्लस सीसी, कैलकेरिया का। और हस्बैंड का जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैडम ने पूछा तो एकदम से उसने आंसर नहीं किया, ही टुक सम टाइम, तो उसने ना जैसे उसको थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था कि आंसर कैसे करूं, तो ऐसे लग रहा था कि उसको समवेयर दैट लग रहा है कि मुझ में कुछ कमी है एंड हाउ आई शुड आंसर। तो मुझे लगा कि वहां पे आंसरिंग स्लोली या आंसरिंग वुड नॉट आंसर व्हेन हर्ट इमोशनली, ये कुछ रूब्रिक है वैसे वाला। एंड उसने जैसे एक आंसर, कोई डॉक्टर ने उसको बताया कि बिकॉज ऑफ दैट हीट वेर यू आर वर्किंग के उसके वजह से स्पर्म काउंट में कुछ कम होता है, बट ही गेव द रीजन ऐसे तो मेरा कांटेक्ट हीट के साथ ज्यादा नहीं आता, तो वहां पे वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था। और ओवरऑल उसको एक अंदर से लग रहा था कि मेरे में कुछ कमी है, बट ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक।
तो नाट्रम म्यूर का फील आ रहा था उसमें, एंजाइटी डार्क। But what you said, answering, unable to answer when hurt emotionally. सर तो यहाँ पे इमोशन का हट हुए इसके. answering unable to answer emotionally when means उसको somewhere he knows that उसका वो just sperm count है. बट उसमें इमोशंस का हट हुए उसके. सर इमोशंस इन द सेंस व्हाट आई फेल्ट बिकॉज उसको जो वो उसको लग रहा है ना कि वो धातु जो बोलता है कि मेरा बराबर नहीं हो रहा है, तो समवेयर दैट ही हैज दैट गिल्ट फीलिंग के मुझ में ही कुछ कम है, सो दैट वे आई थॉट इट इज समवेयर इमोशनली हर्ट. ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग. देखो आप अंडरस्टैंड सही कर रहे हो, लेकिन रूब्रिक आपका नहीं जा रहा है. हाँ हाँ आप समझ रहे हो ना, मतलब उसको वो आप बोल रहे हो कि मुझ में कुछ कमी है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हीट का तो मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं. नहीं, दैट आई टुक एज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल सर, कि उसने बोला कि कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है उसका. ऑब्जेक्टिव इन द सेंस डॉक्टर ने बताया कि बिकॉज ऑफ द हीट उसका असर के वजह से तुम्हारा स्पर्म काउंट कम हो सकता है, बट इट इज नॉट दिस रीजन. हाँ बेटा, बट व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इन दिस? इसका व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? तो दैट इज हाउ ही थॉट ना कि मेडिसिन की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है तो स्टॉप कर दो, तो उसके लिए उसने स्टॉप किया. बट समवेयर ही नोज दैट कि वो बिकॉज ऑफ द स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कत है. सो दैट इंटरनल समवेयर दैट ना कि आई एम लेस समवेयर, तो वो फील आ रहा है. रेचेड आई एम लेस समवेयर का मतलब ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कैसे आएगा? सर मैंने ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वो पॉइंट पे लिया कि डॉक्टर को उसने क्लियर किया ना. तुम रीजनेबल वाली बात बोल रहे हो, बट व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? इनफैक्ट रीजनेबल भी नहीं आएगा इसका. रीजनेबल मतलब क्या हिंदी में या मराठी में, जो भी आपकी मदर टंग है, बोलो तो. व्हाट इज रीजनेबल? वाजिब. वाजिब, वाजवी, वाजिब दामों में. रीजनेबल ये शब्द का आता है जब आप माल खरीदने जाते हो. भैया रीजनेबल भाव बोलो, करते हो ना, बार्गेन करते हो. भैया रीजनेबल बोलो, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है आपको, ऐसा बोलते हो ना. आप जब जा रहे हो, मान लो आप ये शर्ट खरीदने गए, है ना, और अगर उसने बोला शॉपकीपर ने कि मैडम 2000 रुपए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार सर कुछ रीजनेबल बोलो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो. हाँ, 1000 भी बोलता है तो आप बोलेंगे 1000, फिर भी भैया थोड़ा रीजनेबल. ओके, आप समझ रहे हो ना, मतलब हाँ, वाजिबी मतलब ना कम ना ज्यादा. समझ रहे हो ना. सस्ता भी नहीं, महंगा भी नहीं, मतलब ये कि आपके किसी को भी परोड़े और वो चीज भी उस लायक हो. समझ रहे हो ना. हाँ सर. जैसे अभी लेक्चर चलते हैं अपने इधर, तो आपको पता है किसी की 2-2 लाख रुपए फीस है, कोई तो भी अभी आया है उनके 1.5 लाख रुपए कोर्स की फीस है ना, है ना. तो रीजनेबल लगता है क्या आपको? नहीं सर. समझे ना. तो आप समझ रहे हो ना. हाँ सर, समझ गए. हाँ, मेरा इनफर्टिलिटी का कोर्स की कीमत कुछ कितनी है प्रणीता? आपने इनफर्टिलिटी कोर्स की कीमत 1500. हाँ 1500 रुपए में हमने इनफर्टिलिटी का कोर्स लिया. तो लोग बोले अरे बाप रे, इट वाज सो फॉर हाउ मेनी लेक्चर्स, आई थिंक 10 लेक्चर्स और समथिंग वी हैव टेकन. People were very happy because they found it reasonable. उचित, हाँ अंबिका ने बहुत अच्छा शब्द बोला, उचित. रीजनेबल का मतलब होता है उचित, वाजिब, है ना. उचित बहुत अच्छा बोला अंबिका, वेरी. समझ रहे हो ना. हाँ सर, समझ रही हूँ. बट उसका ओवरऑल जो एक गेस्चर्स वो उसको लग के मुझे नैट्रल लग रहा था. सर possibly that objective reasonable may be the wrong rubric from me. हाँ, because you understood it wrong बेटा. मतलब तुम ये बोल रही हो कि जो हस्बैंड की सोच है वो सही है. तुम ये बोल रहे हो ना. हाँ, कोणाला अर्धा ग्लास पाणी पाहिजे, किसके इधर आधा ग्लास पानी चल रही है. अरे यार लोग क्या. अच्छा ठीक है, समझ रहे हो ना. हाँ सर, समझ रही. देखो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एक आपका उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी चीज करने के पीछे का. मैं समझाऊंगा, मेरे लेक्चर जब आएंगे ना, मैं एक एक रूब्रिक भी लेने वाला हूँ बड़े बड़े. ओके ओके, थैंक यू सर. ओके ठीक. तो यू आर थिंकिंग नेचुरल मूव. ओके, बिकॉज व्हाट, बिकॉज उसको अंदर अपने कमी लग रही है. और क्या एंजाइटी डार्क में भी है ना सर.
आप उसमें अंदर कमी लग रही है और क्यों हो रहा है ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ओके लेकिन अंदर कमी लग रही है ना उसको, फिर क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लोग आप अंदर कमी है उसको ये पता चल गया, फिर अब क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे लोग आप। अगर किसी बंदे को ये पता चल गया कि भैया कमी मुझ में है, फिर ये होता है कि एंग्जाइटी डार्क अप्लाई करेगा क्या फिर कि कमी मुझ में है, फिर क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। पॉसिबली इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो फिर। हाँ लेकिन उसको लग रहा है ना, आपके हिसाब से उसको लग रहा है कि मुझ में कमी है, समझ रहे हो क्या। हाँ सर। आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना। नहीं, आपने जब बोल दिया कि मुझ में कमी है, फिर अब क्या सवाल है ना, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जिसमें कमी हो समझ में आ रहा है तो उसने खुद की कमी को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नहीं रीजन समझ में नहीं आ रहा है ऐसा बोल रहा था ना। हाँ पर उसको पता चल गया ना कमी मुझ में है कहीं ना कहीं, आप ही ने बोला रीजन ना। रीजन क्योंकि क्यों कम हुआ है वो नहीं पता चला ना। अच्छा अच्छा, क्यों कम हो रहा है ये पता नहीं चल रहा। ओके, दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग, ही वांट्स टू नो व्हाट एग्जैक्टली उसके अंदर कमी है, हाँ ऐसा, हाँ या क्यों उसके अंदर कमी है ये जानना है उसको। हाँ क्योंकि बिकॉज आफ्टर इवन आफ्टर द मेडिसिन उसका कुछ करेक्शन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट इट वेंट, स्पर्म काउंट तो कम हो गया था ना मेडिसिन के बाद में। तो दैट इज व्हाई क्यों हो रहा है वो पता नहीं, ऐसे वो बोल रहा था। तो दैट इज हाउ दैट एंजाइटी डार्क, दोनों में तो दैट रूब्रिक इज डेफिनेट है एंजाइटी डार्क ऐसा लग रहा है। ओके ठीक है। और प्रणीता बेटा, और किसी को कुछ बोलना और है? कोई कुछ बोलना है किसी को? सर वो लेडी जब एंटर हुई थी तब एक एक रिपोर्ट दे रही थी उसके हस्बैंड के पास, सिंगल हाय सिंगल। समझ, तेरे को हाई समझ लग रहा है क्या नासिर? मैंने पूरा नहीं सुना सर, केस खुद नहीं सुना, बाद में पेशेंट आ गया। ठीक, हाई समझ नहीं है बेटा। मैं समझ गया, वो पत्ते वाला जेस्चर करता है ना एक बार। एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सर आपने नासिर सर जो जितना भी आपने सुना उसमें एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप सोचो उस बारे में तो। मैम देखो उसने एक एक रिपोर्ट मैडम को नहीं बताया, हायो समझ से ना, एक एक हस्बैंड रिपोर्ट डॉक्टर को बताता है और ये कंफर्म करता है कि डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखा कि नहीं। ये लेडी एक एक रिपोर्ट क्या करी थी प्रणीता? हस्बैंड के हाथ में दे रही थी पकड़ने के लिए, हस्बैंड के बाद में हाथ में दे रही, हस्बैंड के हाथ में दे रही थी और उसके बाद में सारे रिपोर्ट लेके वो मुझे लाके उसने दिया। कामाला ठेवला असे का? सर मॅडम वो डॉमिनेशन है क्या? हस्बैंड कामाला ठेवला असे वाटतंय का? अरे भगवान भैया, नासिर फिर शादी हो गई ना। एक्चुअली वो कोविड का सिचुएशन तो था नॉर्मली तो बेटा सारी औरतें नॉर्मली ये होता है ना बेटा, स्त्री दाक्षिण्य होती है ना, तो पुरुष लेते ही अमूमन। हाँ लेकिन ये दे रही है उनके हाथ। हाँ कोई तो कुछ बोल रहा था, सब लेडी और सेम। मैम मैं सर मैम वो डॉमिनेशन है क्या? मेरा नाम क्या बेटा? पेपर दे रहे डोमिनेटिंग हेलो शिल्पा गोयल, डोमिनेटिंग। नहीं डॉक्टर जानवी। हाँ मैम, एक्चुअली वो जब आई एंटर किया उसने, तो उसने एक एक फाइल रिपोर्ट निकाल के पहले तो उसके हस्बैंड के हाथ में दिए, फिर उसने वो बैग रखा, फिर उसने आपके हाथ में दिए और थोड़ा सा आगे आके वो बोलने लगी, थोड़ा सा आपके पास आके बोलने लगी, थोड़ा सा आगे खिसक के नहीं आगे आगे नहीं बोली वो मैडम। हाँ उसने हाँ हस्बैंड से रिपोर्ट लिए, क्योंकि वो कोविड का सिचुएशन था ना, वो काफी दूर पेशेंट बैठते थे, सब अपने अच्छा लिए भी वो डरा हुआ माहौल था ना थोड़ा। तो हाँ उसने हाँ रिपोर्ट निकाल के मेरे टेबल पे मतलब मेरे पास दिए और बोली कि ये पहले का सोनोग्राफी है ये अभी का। तो मैंने बोला ठीक है आप रखो मैं देखती हूँ। फिर वो जाके अपनी जगह पे बैठ गई वापस। अच्छा, मुझे लगा आगे आके बोल रही है, तो मैं उसको क्लिंगिंग ले रही थी और स्माइलिंग कर रही है। और जब भी आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट उसके पति की तरफ देखा उसने और बाद में बोली। और जब आपने भी बोला कि हाँ घर में कौन कौन है, तो इनकी
मम्मी है, यानी मेरी सास है ऐसा नहीं बोला उसने, इनकी मम्मी है करके बोला। जानवी परफेक्ट बेटा, ये गॉड ब्लेस यू। Very good. ये What is एक it? भी था। हाँ, वेरी ये गुड एक भी ऑब्जर्वेशन था बेटा, उसमें। वेरी गुड बेटा। ये एक भी था। और फिर बाद में जब भी उसको बोलना था कुछ, तो वो पहले हस्बैंड की तरफ देख रही थी और फिर थोड़ा सा, यानी कि उसको बोलना था लेकिन वो नहीं बोल रही थी कि हाँ इनमें कमी है, लेकिन उसको सफर मैं कर रही हूँ। फिर बाद में जब उनका बोलना हुआ कि हाँ ठीक है, इनका ही स्पर्म काउंट कम है, इसकी वजह से ये हो रहा है, वो बाद में क्लियर हुआ। इसीलिए मुझे मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है कि रॉन्ग सफर में है। और जब पहले सोच रही थी, आपने थोड़ा सा क्लियर किया, मैं पल्सेटिला सोच रही थी, लेकिन जब आपने ये सब बोला तो मैं थोड़ी सी थिंकिंग क्यों पल्सर सोच रही थी जानवी, पल्सर क्यों सोच रही थी? वो मैडम के आगे आके बोल रही थी ना, मुझे लगा थोड़ा सा क्लीन कर रही है क्या। हाँ, लेकिन कोविड की सिचुएशन में भी नजदीक आके आके बोलने की कोशिश करना, यू कैन टेक इट क्लीन दैट आल्सो, मतलब नहीं, लेकिन you can मैडम take ने it क्लियर clean किया और है ना कि नहीं, वो वापस पीछे जाके बैठ गई, सिर्फ वो रिपोर्ट्स देने के लिए ही आगे आई थी। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब पास आके नहीं बोल रही थी, रिपोर्ट देने के हाँ लिए आई। हाँ, रिपोर्ट देने के लिए आगे आई थी। सुनने में मेरा थोड़ा सा ये हुआ था। हाँ हाँ, तो यू डिडंट टेक क्लीन, वेरी मेरे गुड। दिमाग हाँ, में मैडम क्लिंगिंग आया था उस वक्त, अच्छा, लेकिन एक बात बताओ जानवी, अगरचे पेशेंट अपने रिपोर्ट अपने अपनी बात बोलने से पहले हर बार अगर हस्बैंड की तरफ देख के बोल रहा है डॉक्टर को सवाल कर रहा, तो क्या हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी आएंगी बेटा? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक तो हस्बैंड डोमिनेटिंग है, और दूसरा कि ये टिमिडिटी में है। अच्छा, जो लेडी है वो डोमिनेटिंग हस्बैंड अगर रहा जानवी, तो ये वो इतना बोलने की हिम्मत करेगी हस्बैंड को क्या इनकी माँ रहती है हमारे साथ? नहीं, एक बोलने में तो बोल दूसरी सकती। बात, सारी रिपोर्ट निकाल के हस्बैंड के हाथ में देंगी अगर डोमिनेटिंग नहीं रहे, देगी, नहीं देगी। बराबर ना? हाँ हाँ समझी ना? हाँ हाँ हाँ। दोनों भी पॉसिबिलिटी, दोनों भी चीजें, हस्बैंड हम्म। डोमिनेटिंग है तो नहीं होगा, वो हाथ में नहीं देगी। है ना? हाँ, तो व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी यू सेड? कि ये उसके सामने ये नहीं बोलना चाहती है, ये जो भी है वो, और खुल बोली के ना, नहीं बोलना चाहती है कि अरे पर इतना बोली इनमें इनकी माँ रहती तो इसमें और ज्यादा क्या खोल के बोलना चाहिए, मेरी सास बोल सकती थी ना। हाँ, उसने नहीं बोला ये चीज। फिर क्या, फिर क्या पॉसिबल, समझ रही ना बेटा जानवी कैसे अपने खुद के सवालों को अपने जवाब देने का हाँ, मतलब, अगर ये आईपीआर में बोलना थोड़ा नहीं चाहती तो इनकी माँ हाँ, ऐसा इतना बड़ा स्टेटमेंट करती क्या? नहीं। I mind you, I am a husband, okay, so I can understand ना, if my wife is saying such a word that इनकी माँ रहती है तो मुझे लग जाएगा, हाँ या वैसे वैसा अगर मैं बोलूं मेरे वाइफ को कि इनके पिताजी रहते हैं तो उनको भी लगेगा, हाँ, राइट? यस तो दिस इज अ बिग स्टेटमेंट, राइट? इंस्टेड ऑफ यस। कॉलिंग सासू माँ या मम्मी या व्हाटएवर, हाँ है ना, हाँ, मम्मी जी। इन्होंने उसने 2 बार ऐसे ही बोला है। हाँ, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी आएगी बेटा? मे बी उनमें सब कुछ ये ठीक नहीं चल रहा होगा, और क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि वो अकेली ही है और जल्दी से शादी भी हो गई, और इनकी माँ को करना नहीं हो रहा था, काम अगर नहीं करने जल्दी से, हो रहे थे। अब बेटा जानवी एक बात बता, अब इसकी शादी अगर जल्दी हुई है मतलब कम उम्र में हुई है, हाँ 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 तो इन्होंने, ये पेशेंट ने हस्बैंड की माँ को क्या बोलना चाहिए फिर? मम्मी बोलना चाहिए। हाँ, तो इतने सालों में भी इन्होंने अब तक उनको मम्मी नहीं बोला है। एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, मतलब मम्मी नहीं बोला है, अपनाया नहीं है। हिंदी में अपनाया बोलो नहीं। बेटा, बहुत मजा आता है, हिंदी में हाँ बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, एक्सेप्ट करना मतलब मंजूर, मतलब अपना है ना, किसी को ले, ओके। अपनाया नहीं, बराबर। हाँ हाँ, अपना एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्टेड नहीं कि अभी बाबा किसी ने नोटिस भेजा मुझे नोटिस एक्सेप्ट नहीं, कोर्ट से नोटिस आती है ना, तो वी डोंट हाँ एक्सेप्ट। तो हाँ, एक्सेप्ट नहीं करना मतलब रिजेक्ट करना, लगाव अब नहीं, यहाँ पर लगाव अपना, नहीं है। हाँ, समझ रही क्या? यस यस। नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू एनालाइज, इट्स वेरी सिंपल। क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है, फिर वो क्या पॉसिबिलिटीज को अपोज में क्या चीजें जा रही है, हाँ अंडरस्टूड?
अच्छा, तो शी इज सेइंग, बट व्हाट इज द अमीना बेटा, यू आर सेइंग दैट शी इज फ्रस्ट्रेटेड कि बिकॉज ऑफ दिस, बट उसके अंदर इसकी माँ का क्या कसूर है ना? अमीना अच्छी डॉक्टर अमीना, she said that she is frustrated because of this, that she is not getting, but she should be frustrated with the husband, not with his mother, no? नहीं, एक्चुअली सर हो क्या रहा है ना कि प्रॉब्लम हस्बैंड में है, अर्ली इजैकुलेशन हस्बैंड का हो रहा बट है। बेटा अर्ली इजैकुलेशन से इनफर्टिलिटी थोड़ी नहीं होती, अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है बट दैट इजैकुलेशन इज हैपनिंग इन द वजाइना ना। यस, Do you understand? It is that only it has to penetrate and the semen should go in the female's womb. Yeah. Do you understand? Early ejaculation से उसका satisfaction नहीं होगा physical, वो अलग चीज है। Infertility का क्या reason होगा? But early इसके Sir, बाद may I talk? Yes, yes. Anybody, please. You may. It is Uh, June, but Thank you, ma'am. Thank you, sir. but it Actually, is June, huh? It is June, but you said you may. May I talk? Sorry, PJ. सर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अपना नहीं रही है, एंड लाइक द लास्ट लेक्चर मनीषा मैम का था, देयर वाज दिस ऑब्स्ट्रक्शन जो, तो उसने कहीं ना कहीं अपने मन में उसको अपनाया नहीं है। हर मदर इन लॉ इज अ फैमिली एंड द मन में सन। नहीं, डायरेक्टली अपनाया नहीं, सीधा इनकी माँ बोल रही है, कहाँ मन में नहीं अपनाया, सीधा सीधा आउटराइट की है। हाँ, तो समझे वो वो उनके सर्कल में नहीं है इन अ वे, इनर सर्कल में नहीं है। एंड वो ही सर एक ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है। आई फील दैट शी इज नॉट एबल टू कंसीव, क्योंकि हस्बैंड, दैट इज द हिंड्रेंस। ओके, तो वो एक दैट फीलिंग शी इज हैविंग, नो। एंड सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शी इज, वो हंसते हंसते कंप्लेन कर रही है कि हमारी शादी जल्दी उम्र में हो गई, लाइक मैं इतनी छोटी थी एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि टू हेल्प आउट माय इन लॉज, कि मतलब इनकी मम्मी और इन लोगों से ये, तो शी इज नॉट हैप्पी अबाउट द सिनेरियो कि ये क्या मेरी शादी इसलिए करी ताकि मैं इनके घर का काम कर सकूं। तो अपनापन इसलिए भी नहीं आया बिकॉज शी वाज, उसके साथ एक्सपेक्टेशंस इतनी है, एंड How do you know, madam, कि she is not happy? She didn't say कि she is not happy. क्या एक्सपेक्टेशंस है बेटा? एक्सपेक्टेशन यही कि मेरे माँ बाप से काम नहीं होता है, मतलब इनके माँ बाप से काम नहीं होता, वो लोग ओल्ड है इसलिए, पर मुझे समझ में नहीं आया व्हाई डिड शी से दिस कि इन लोगों से काम नहीं होता है, मेरी शादी जल्दी हो गई। ये काइंड ऑफ कंप्लेनिंग हम ले सकते हैं, बट वो उसको एकदम सटल वे में कन्वे कर रही है। शी इज नॉट कमिंग आउट, यू नो, एकदम ओपनली नहीं आ रही है कि ऐसा हुआ। वही मैम भी बोल रही हैं कि उसने कहीं कंप्लेन किया नहीं, शी इज जस्ट स्टेटिंग कि इसलिए मेरी जल्दी शादी हो गई, एंड एट द सेम टाइम वो हर्ट भी नहीं करना चाह रही है, बार बार हस्बैंड की ओर देख रही है, उसका रिएक्शन देख रही, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो मैनिपुलेट कर रही है। अच्छा, मैनिपुलेशन कैसे? हाउ? आई मीन वो हाउ मैनिपुलेशन, हाउ इजीली, आई थिंक क्लियर कट नहीं कह रही है, वेग सिग्नल्स दे रही है, व्हिच यू नो लाइक दैट। नहीं, I understood, but how will you take manipulative as a rubric here is what I want to नॉट understand. एज अ मैनिपुलेटिव, बट उसका जो स्टैंस है ना सर, वो ऐसा मुझे लग रहा है कि शी डजंट वांट टू हर्ट हर हस्बैंड आल्सो, एंड एट द सेम टाइम शी इज नॉट वेरी हैप्पी विद द सिनेरियो आल्सो। ऐसा मुझे समझ में आया। ओके, हाँ, ओके। मैनिपुलेशन में नहीं समझ पा रहा हूँ आपका, आप बोल रहे हो बहुत अच्छा, बट आपका मुझे मैनिपुलेशन ये वर्ड नहीं समझ पता नहीं क्यों। मैनिपुलेशन में आप अपने मन की बात सामने वाले से करा के लेते हो, उसको पता भी नहीं चलता। यस, है ना? यस अमूमन जो पॉलिटिशियन लोग करते हैं ज्यादातर, या बराबर वो अपने को मैनिपुलेट करके लेकर जाते हैं, तो उस वक्त अपन वोट दे देते, फिर बाद में पछताते यार मैंने तो समझा था राम, ये तो रावण निकला, है ना? यस ओके सर।
अंडरस्टूड ना बेटा? आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो. So what can be the possibility बेटा? What will be the rubric for this behavior? सर सेल्फिशनेस लग रहा है मुझे. क्यों? सेल्फिश होती तो उसके सासू माँ को रहने देती उनके साथ में. सर हो सकता है तभी. एज्यूम मत करो बेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है. Yes, we can't assume. That's right. We should not. We can't. We should not. You can, but you should not. है ना? Okay. हाँ. So what else is Sir, possible, beta? What else is possible? That she's an see early marriage. Okay. So I always say early marriage is like a rape to the girl. Right? If it is between the husband and wife, it is a rape. If the girl is smaller than the husband, by age and all, so it's a sort of rape. Unless it is a love marriage, okay, then it is a different thing. Just like Dr. Hahnemann had, his wife was pretty younger than Hahnemann sir. There are many. अभी जैसे शाहिद कपूर है, उसकी वाइफ है, दोनों के बीच में काफी 10-15 साल का फासला है. So that's a different thing. But जो traditional marriages जो होते थे, है ना? तो rape is not only physical, ना, it is emotional also, है ना? So that is a possibility. What that can also be the reason why she is repelling, है ना? Because क्या हो रहा है? क्या diagnosis क्या था प्रणीता? वो सीमेन रुक नहीं रहा है ना, वापस आ रहा है ना? That can be the possibility why she is refusing the semen, right? ना? Acceptance नहीं है, ये बहुत सही आपने पकड़ा लिया. जानवी ने और अभी किसने बात किया था? तो श्वेता. अच्छा हाँ, तू निशु की स्टूडेंट. ओके, मनीषा मैडम की स्टूडेंट हो ना आप? No, sir. No, you know from the same college. Okay. हाँ, प्रणीता तू काहीतरी बोलत होती. सॉरी. नहीं. चला 5-6 वाजता आले. और पटपट चला. और कोई है? सर मुझे एक बात करनी थी सर. मैम जो उन्होंने बोला ना कि आप पीसीओडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और फिर सडनली वो बैक पेन के ऊपर आ गई, उसका मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम शायद मतलब वो अपनी इनफर्टिलिटी को इतना महत्व नहीं दे रही है जितना कि हस्बैंड के इसके लिए दे रही है, ऐसा थोड़ा. बट वो खुलकर बताना नहीं चाहती है, ऐसा कुछ है मैम? क्योंकि आपने बोला ना वो सडनली बैक पेन के ऊपर आ गई, मेरी बैक भी दुख रही है. बट अगर इनफर्टिलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देती तो शी स्टार्टेड विद दैट ओनली ना कि 5 साल हो गए शादी को, कंसीव नहीं. यस मैम, बट मतलब शायद she is what trying. you want to say is that she is blaming the husband for it, right? She wants to maybe, but she doesn't want to hurt husband. हाँ, हस्बैंड को हर्ट भी नहीं करना चाहती है, बट बताना चाहती है कि मेरा इतना सीवियर मतलब कंडीशन, मतलब इतना ग्रॉस मेरे साथ नहीं है, बट मेरे हस्बैंड के साथ शायद है. मतलब वो उसका मुलाहिजा रख रही है. यस सर. She is maintaining that his husbandship, है ना? यस सर, उसको मतलब उनका रिस्पेक्ट भी रखना है, बट बताना है कि मुझ में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज्यादा ऐसे. नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, ये बताना है, या हस्बैंड में प्रॉब्लम है ये बताना है. इस चीज की वजह हस्बैंड है ये बताना है क्या? व्हाट एग्जैक्टली? शायद दोनों बैलेंस करना है सर. प्रॉब्लम दोनों में भी है, बट मतलब शी डजंट वांट टू हर्ट हस्बैंड आल्सो, ऐसा लग रहा मुझे. हाँ, चाय पी बेटा थोड़ी सी. You're thinking very well, beta. Don't get confused by me. Everybody, please carry on with your thinking. I am just trying to correct and trying to give you the way to analyze things. That's it. How your mind should, like how you should analyze any point that is coming to your mind, like any rubric that is coming to your mind, or even any thought that is coming to your mind. How you should analyze is what I'm trying to explain by my way. Okay. You may have another view. Okay. Anybody else now? So वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है
मतलब एक्सेप्ट इन द सेंस वो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है और उस वजह से मुझे सोसाइटी की एम्ब्रेसमेंट फील वो करनी पड़ रही है। अच्छा, और उसमें मतलब उसको है कि मेरे को फंसा दिया है, सबके ताने वगैरह मेरे को सुनने पड़ रहे हैं, मतलब ऐसा। अच्छा, शी इज फीलिंग डिसीव्ड, इज इट? क्या ट्रैप? क्या क्या इरम बेटा ट्रैप, क्या? ट्रैप। मतलब जाल में अटक गई है। ट्रैप का मतलब जाल में अटकना हाँ। या जाल में फांसना। ट्रैप मतलब ऑलरेडी इन द ट्रैप, है ना? ओके, ऑलराइट, Ranita, over to you. Now you can. मैडम उसने ऐसा नहीं बताया ना कि उसको, मतलब ये जो आप बोल रहे हो ट्रैप वाला, तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो अटक गई है या ऐसा कुछ, उसको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, जाल की बात नहीं बेटा। मतलब ये शायद टू मच ऑफ अजम्पशन हो जाएगा ऐसा सोचना। उसको ऐसा लग रहा है। नहीं, इरम का क्या कहना क्या है कि हस्बैंड की गलती, हस्बैंड की और कमी की उसने वजह से। इनफैक्ट उसने बोला भी नहीं कि लोगों के ताने सुनने पड़ रहे, ये ऐसा मैम ये ताने मतलब उसका ऐसा है कि मेरे पीछे जिनकी शादी भी उनके बच्चे हो रहे हैं और मैं उसने अभी। नहीं बोला है, ये हस्बैंड का वर्जन है। ओके। ये वाइफ ने नहीं बोला है, उसने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि कौन क्या बोल रहा है, तो ये कुछ भी नहीं बताया। चलो, और कोई? तो पंडिता मैडम आप अगला फिर चलो, 6 बजे। कोई कुछ बोलना चाहता है या फिर मैं डिस्क्लोज कर दूं? बताइए आप, पंडिता स्टार्ट। हेलो, तो हम एनालिसिस के तरफ जाते हैं। तो पहले वाइफ का केस देखते। तो वाइफ का पहला चीज तो एम्बैरेसमेंट यस है, उसका जो स्माइल था वो एम्बैरेसिंग था, तो आई टुक elements from embarrassment. Second thing, anxiety darking, very rightly said by somebody, I think 2-3 members said anxiety dark. और ये जो उसका था कि मैंने उसको पूछने के बाद हाथ का ऐसा जेस्चर्स करना, वो स्माइल और वो ना इधर उधर देखना, जैसे वो ऑकवर्ड हो गई, एक झिझक थी उसके अंदर। तो वो एक उसको नॉट एट ईज बोलते हैं ना हम लोग, वो कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, इल एट इज, इल एट इज, इल एट इज। एट ईज। तो ये चीज मैंने लिया था, टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड। मतलब ये सबको जोड़ेंगे तो एक रूब्रिक आता है, टिमिडिटी, बैशफुल एंड ऑकवर्ड। ये तीनों भी चीजें एक ही रूब्रिक में आते हैं। ये रूब्रिक आपको कंप्लीट रेपर्टरी में मिलेगा, सिंथेसिस में साथ में ये तीनों भी नहीं है। मतलब वो झिझक रही है, शर्मा रही है और ऑकवर्ड फील कर रही है, समझ रहे हो ना? मतलब वो शर्मा रही थी ना ये बात बोलने के, उसको ये बात बोलने के लिए शर्म आ रही थी। शर्माना एक चीज है और शर्म आना भी एक चीज है, क्योंकि टिमिडिटी, ऑकवर्ड एंड एम्बैरेसमेंट साथ में जोड़ता है। यहाँ पे टिमिडिटी, बैशफुल, ऑकवर्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज शी वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड एंड ऑकवर्ड एंड टिमिड। तो वो शर्म आना, ये खिजना या खिसियाना होना इज embarrassment. At the same time, she was feeling bashful also. Like शर्मिला भी उसके अंदर एक पन था. Okay, that is why this rubric can be taken, right? Okay, great. एंड जो चीज उसने बोली कि इनके घर में कौन कौन रहता है, तो इनकी माँ और हम दोनों, मतलब हम तीनों ही रहते हैं। तो जो था इनकी माँ, मतलब हस्बैंड की माँ इसकी कोई नहीं है क्या? वो ये भी बोल सकती थी ना कि मेरी सास है और हम दोनों रहते हैं। और फिर एंड में भी उसने बोला कि शादी हमारी जल्दी हुई क्योंकि इनके माँ बाप एजेड थे और उनसे काम नहीं हो रहा था, इसके लिए शादी जल्दी हुई। तो अब तक तो उसके माँ बाप इसके सास ससुर बन चुके हैं, तो उसने वो रिस्पेक्ट उनको नहीं दिया। तो यहाँ पे जैसे सर ने सिखाया है, हिपोक्रेसी रूब्रिक हम लेते हैं। हिपोक्रेसी मतलब दाम्भिकता।
तो अगर ये सब रूब्रिक हम लेंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, एंजाइटी, डार्क इन, टिमिडिटी, बैशफुल, ऑकवर्ड एंड हिपोक्रेसी, तो रेमेडी आती है पल्सेटिला। तो आई गेव हर पल्सेटिला 200 वीकली फॉर 4 वीक्स, और नेक्स्ट मंथ में उसको कंसीव हो गया, इमीडिएटली उसको कंसीव हो गया। तो ये केस में मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव हम स्टडी करते हैं तो उसमें मैंने समझा कि वो पहले आके बैठी बैग में से रिपोर्ट निकाल रही थी, जैसे मैंने उसको बोला कि बोलो, फिर भी वहां पे उसका ध्यान नहीं था, शी वॉज बिजी इन टेकिंग आउट रिपोर्ट्स और हस्बैंड के हाथ में दे रही थी। तो जैसे किसी ने बोला था कि आई थिंक नासिफ सर ने कि हस्बैंड को ये समझ के, नौकर जैसा समझ के, बट वो कोविड का सिचुएशन था, उसके सामने कुछ रखने को टेबल वगैरह था भी नहीं, तो दिस कुड बी आल्सो वन ऑफ द रीजन कि वो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था हस्बैंड के हाथ में देने किसी में। तो इसके लिए मैंने ये क्लिंगिंग वगैरह में मैं नहीं पढ़ी। मतलब वो हस्बैंड पे अपना हक जताती है अच्छे से, ये खासियत है इस रेमेडी की। ये रेमेडी जो है ना, हस्बैंड पे बराबर से हक जताती है। हस्बैंड भी सुनता है, बराबर सुना लेते, आइडिया से करा लेते, सुने नहीं सुने बराबर करा लेते। वैशाली को बहुत तजुर्बा है पल्सेटिला का, है ना बेटा? एक्चुअली दिस इज मैनिपुलेशन है बेटा। किसने बोला था मैनिपुलेशन के बारे में? कौन बोला था? मतलब दे नो हाउ टू गेट द थिंग्स डन। मैनिपुलेशन का और एक मतलब है, दे नो हाउ टू गेट द थिंग्स डन, बट ओनली थिंग शी इज फेलिंग इन मैनिपुलेटिंग इज not having a child. Okay. तो वो जो चीज थी कि मेरे बात पे उसका ध्यान नहीं था, वो वो रिपोर्ट निकाल रही थी, फिर उसने उसकी थैली रखी, आराम से उठ के मेरे पास आई और रिपोर्ट दिया। तो ये चीज क्या है, मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको पूछ रही हूँ कुछ, बट उसका ध्यान नहीं, वो अपने अपने नहीं है, उसको जो करना है वो कर रही है। तो ये बहुत अच्छे से सर ने हमको पढ़ाया इसको पेशेंस लेने का, मतलब पेशेंस में अपने को फील आता है कि अरे क्या कर रहे हो, मतलब अब खुद के टाइम से चल रहे हैं आराम से, कुछ पड़ी नहीं है कि सामने डॉक्टर बैठे हैं, हमारा कंसल्टेशन करने का है, अपने अपने टाइम से चलते हैं। तो अक्सर ये पेशेंस वाले लोग, ये फॉस्फोरस में देखा है ज्यादा, पल्सेटिला में तो मैंने फर्स्ट टाइम पेशेंस का रूब्रिक यूज किया है। तो फॉस्फोरस का अक्सर ऐसे देखा है कि मतलब कुछ भी हो वो अपने हिसाब से ही चलेंगे, आराम से एकदम उनको जैसा चाहिए वो वैसा ही करेंगे। तो इस चीज को भी हम पेशेंस ले सकते हैं कि वो अपने ही इसमें है, आराम से चल रहे, उनके हिसाब से चल रहे। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में मैंने ये पेशेंस रूब्रिक इसमें समझा। ठीक है, अभी हस्बैंड के एनालिसिस के तरफ जाते हैं। जैसे हस्बैंड का भी था, पहली चीज उसने बोली थी कि बाकी सब कुछ, इनकी बाद में भी शादी हुई, उनको बच्चे हो रहे लेकिन हमको नहीं हो रहे, तो यहाँ पे एनवी लिया था, ठीक है, कि दूसरों को हो रहे और हमको नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे एनवी लिया था। जैसे एंजाइटी डार्क, किसी ने अच्छे से बताया था कि एंजाइटी डार्क है, तो ये वो भी बोल रहा है कि ये क्यों हो रहा है, डिस्चार्ज क्यों जल्दी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एंजाइटी डार्क प्लस अफेक्टेशन भी, क्योंकि प्रॉब्लम तो है इसको, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज वाइफ ने बताया था कि ये टेंशन लेते हैं कि मेरी वजह से नहीं हो रहा है, क्या मतलब मेरे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैंने पूछा कि आपको कुछ टेंशन आता है, तो बोला नहीं मुझे कुछ टेंशन नहीं आता, टेंशन में नहीं लेता, मैं तो लोगों को भी बोलता हूँ जब होना है हो जाएगा, नसीब में है तब हो जाएगा। मैं वाइफ को भी बोलता हूँ कि तू टेंशन मत ले, जब होना है हो जाएगा। मतलब अंदर से डरा हुआ है बट वो बता नहीं रहा है।
एक्चुअली उसको टेंशन आ रहा है बट वो अपने सामने वो चीज रिवील नहीं कर रहा है कि मुझे टेंशन आ रहा है। मतलब इसका एक मतलब कि इसका वीकनेस भी बाहर आ जाएगा ना। लाइकोपोडियम, तो इसको मैंने लाइकोपोडियम दिया था। तो लाइकोपोडियम का अक्सर ये रहता है कि वो जहाँ पे उनका वीकनेस दिख जाएगा ना वहां पे वो मतलब वो नहीं दिखाना चाहते उनका वीकनेस। और इसका मेन रूब्रिक मैंने लिया था जो सर ने बहुत अच्छे से एक ऑब्जर्वेशन सिखाया है लाइकोपोडियम का। इनिशियली जैसे मैंने पूछा बोलो तो उन्होंने कुछ मोमेंट ऐसा कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोले, फिर उसने स्टार्ट किया कि धातु रुकता नहीं है। तो ये जो चीज है टिमिडिटी, पब्लिक अपीयरिंग, टॉक टू दो कैपेबल, मतलब ये बोल सकता है इंसान फिर भी ये नहीं बोल रहा है, ये शर्मा रहा है बोलने के लिए। ठीक है, मतलब जिसको सर ने धक्का स्टार्ट लाइकोपोडियम हमको पढ़ाया है, झिझक रहा है बेटा, झिझक रहा है वो, उसको थोड़ा पुश करना पड़ता है तब वो बोलते हैं। एक बार वो बोलने लगता है तो बाद में वो बोल देता है। तो ये जो चीज है ना लाइकोपोडियम की कि वो बाकी तरफ बोलेगा लेकिन जब फोकस उसके ऊपर आता है, लाइट उसके ऊपर आ जाता है, जब नैरो हो जाता है ना तो वो नहीं बोलता है, वो अक्सर ना कॉन्शियस हो जाता है इस वक्त पे। तो यहाँ पे एक रूब्रिक सिखाया था, फियर इन नैरो प्लेस, मतलब जैसे लाइट नैरो होके अभी इसके ऊपर आ गया। अब तक वाइफ से बात करी थी तब उसने एक दो बार बीच में बोला, लेकिन अब उसके ऊपर लाइट थ्रो हुआ है, अब उसके ऊपर फोकस हुआ है, तब वो नहीं बोल रहा है, तब वो कॉन्शियस हो गया क्योंकि अब टाइम आ गया कि उसका वीकनेस पता चल सकता है दूसरों। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट विथ वाइफ ऐसा भी लाइकोपोडियम का है रूब्रिक। तो मतलब यहाँ पे सब लैक है ना, उसका स्पर्म काउंट भी कम है, वो उसका बात करने का भी मतलब वो कम है, जैसे वो उसने पहले वक्त लिया और फिर उसने स्टार्ट किया। तो लाइकोपोडियम में रेमेडी है ना, अक्सर इनफर्टिलिटी के केसेस में मेल्स में हमको मिलती है, मेल पेशेंट में लाइकोपोडियम काफी फ्रिक्वेंटली आता है, तो उसको लाइकोपोडियम 30 दिया था। और आई थिंक वो लोग मेरे पास आए थे, उनके ओव्यूलेशन का पीरियड कुछ था और नेक्स्ट वीक में उनको कंसीव हो गया। फिर 9 महीने ये पेशेंट ने, लेडी ने ट्रीटमेंट ली बराबर से, और जब इनको बच्चा हुआ तो उसने मुझे दोनों के साथ फोटो भेजा और उसने बोला कि थैंक यू डॉक्टर कि आपकी वजह से हम लोग माँ बाप बन सके, क्योंकि 5 साल ये लोग बहुत जगह घूमे थे और मतलब किधर भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। और उसने बोला कि काफी लोग हमको पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ बच्चा, कहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, तो हम काफी लोगों को हमने आपका नंबर शेयर किया है। और सच में इन्होंने काफी पेशेंट भेजे इनफर्टिलिटी के लिए भी और बाकी भी अदरवाइज भी ऐसे उन्होंने पेशेंट्स भेजे। तो पल्सेटिला हमको यूजुअली अनग्रेटफुल रूब्रिक में मिलता है, बट जरूरी नहीं कि हर पल्सेटिला अनग्रेटफुल होगा, हर रेमेडी का अलग अलग शेड्स होता है। तो ये लेडी इतना मतलब ग्रेटफुल है मेरे से बात करते हुए, तो वो हमेशा मतलब उसका कभी मुझे मेरे साथ बात करने में या कुछ ऐसा बिहेवियर में कभी भी अनग्रेटफुल वाला फील नहीं आया। इनफैक्ट उसने आज भी मुझे कॉल किया था किसी रीजन से, तो अभी भी वो बोल रही थी कि थैंक यू डॉक्टर, मतलब मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ कि आपकी वजह से हमको इतनी अच्छी प्यारी बेटी हो गई करके। तो भी आई थिंक उनका सितंबर में 1 साल की हो जाएगी बेटी। तो दिस इज ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटफुल है इसलिए जल्दी हो गया। हाँ, वेरी नाइस। अनग्रेटफुल रहा तो इट टेक्स टाइम टू गेट क्योर। यस सर। अच्छा, जानवी बोल रही है वो आपको प्लीज कर रही है बाय सेंडिंग पेशेंट्स। ओके बेटा, लेकिन देयर इज वन मोर रूब्रिक दैट पल्सेटिला इज देयर इन, इज रिलीजियस अफेक्शंस, है ना।
तो ऐसा नहीं है ना कि वो किसी से प्यार से जुड़ भी जाती है ना बेटा। पल्सटला इज अ मदर ना, पल्सटला बोलते ना, वो क्या है, क्या रूब्रिक है वो, केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, शायद ना उसके अंदर है ना पल्सटला। हाँ, पल्सटला केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, है ना। तो डोमेस्टिक, उसका जो डोमेस्टिक होता है ना, मैंने देखा है पल्सटला अक्सर पूरे गली की माँ होती है। ओके, तो पल्सटला बहुत प्यार देती भी है, ऐसा नहीं है कि वो बस प्यार लेती है। एक रूब्रिक है ना सेल्फलेस, उसमें भी है ना पल्सटला। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मैनिपुलेट ही कर रही है और वो सिर्फ प्लीज ही करने की कोशिश कर रही है। पल्सटला में होता है, पल्सटला भी सर बहुत प्यारे होते हैं। देखो, लाइकोपोडियम से काम करा के ले रही है, लाइकोपोडियम के सामने ये बोलने की वो हिमाकत कर पा रही है कि इनकी माँ है और इनसे काम नहीं होता, इसलिए मेरी शादी हुई है। तो इतना कर पाना, और जैसे डॉक्टर वैशाली ने बहुत अच्छे से बोला कि वो बराबर पल्सटला काम करा कर भी लेती है। तो होता है, तो हर चीज को आप नेगेटिव अंदाज से मत लिया करो। सबसे पहले ना, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको बोलते रहता हूँ बेटा, कि पेशेंट को कभी भी और अच्छा और बुरा बोलो मत। पेशेंट पेशेंट है और उसको हमने सिर्फ एनालाइज करना है। जो पॉइंट हमारे पास है उतने ही पॉइंट लेकर हमने एनालाइज करना है। वो एक शेर मेरा याद रखना हमेशा, मुझे बहुत पसंद है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मतलब बंदा किसी के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो बुरा है इसलिए बिहेव कर रहा है। वो अंदर उनके कुछ इंटरनल रिफ्ट हो गए। अभी आपने को पता नहीं ना कि सासू माँ कैसे है, वी डोंट नो। अब लाइकोपोडियम की माँ है, आप समझो, तो कैसी हो सकती है, अपने को पता नहीं। इवन द सासू माँ कैन बी लाइकोपोडियम, you never know. So let's not blame anybody. In fact, the patient has entrusted in us and come to us for such a big disease, and then again the patient is thankful to us also. So yes, you are saying that she's trying to please madam by doing this, or maybe she's trying to repay it by sending the patients, and maybe she's feeling कि मेरे को हुआ तो और भी मेरे जैसे दुखी है, उनको भी होता है ना। पल्सटला में भी सैडनेस सर होता है ना, उसमें केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट में भी है ना पल्सटला, वो भी है, और पल्सटला सैडनेस में भी है ना, पल्सटला सैडनेस में भी है ना बेटा, दुख में भी है ना। पल्सटला पिटीज हिमसेल्फ में भी है ना, वो खुद को दुखियारी बोलती है ना पल्सटला। पल्सटला है ना, पिटीज हरसेल्फ में है ना, तो पल्सटला अपने आप को दुखियारी बोलती है ना। तो जो बंदा अपने आप को दुखियारा बोलेगा, वो तो दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये अच्छी बात है, जिसको लगेगा कि मैं दुखी हूँ और मैं किसी और के दुख दूर कर पाऊँ तो अच्छा है ना। तो ये भी तो अच्छी चीज है ना बेटा। उसने मुझे बाद में बोला था एक बार फोन पे कि मतलब किसी को वो रेफर करी थी कि हमारा अच्छा हुआ तो मतलब बाकी किसी का भी अच्छा हो जाए तो अच्छी ही बात है। See, I told you ना, so it's there. तो ये एक आम सोच है और ये अच्छी भी सोच है ना, ये सोच अच्छी है ना। इनफैक्ट सबने ऐसा ही होना चाहिए ना। So then पल्सटला आप दिमाग से निकाल दो कि बैड रेमेडी, phosphorus is bad remedy, arsenic is bad remedy, murk is bad. Then which is good remedy? In fact, every remedy is a good remedy because the remedy is healing the person. It is healing the sick. So no remedy is bad, right? हिपोक्रेट्स समझा नहीं इसके अंदर, इनकी अच्छा, मामा हाँ बोले बात। हाँ, प्रणीता बोलिए आप। हिपोक्रेसी प्रणीता बताइए। क्या मैडम? ये प्रणीता वो बोल रही हिपोक्रेसी नहीं सब। हिपोक्रेसी आपने बताया ना, हाँ तो अब इनकी मामा मनोज यू सी द वीडियो, डुप्लीकेट नहीं लेते हैं। जिनको ये देखना है कृपया यूट्यूब पर जाके देख लेना। ओके, तुम्हारा नहीं बता सकते। हाँ, ये हिपोक्रेसी आवाज बताओ। बहुत कम आ रही है मैडम, प्लीज थोड़ा। सुनना बेटा, दीपा ने बोला कि हिपोक्रेसी एक्सप्लेन करो। अच्छा, हिपोक्रेसी मतलब दाम्भिकता। तो ये लेडी मतलब जब उसके सास के बारे में बात कर रही है या दोनों के भी बारे में जब भी वो आखिर में बता रही है सास ससुर के बारे में, तभी वो ऐसा नहीं बता रही है ना कि घर में कौन कौन रह रहे हैं। तो आइडियली कैसे बोलना चाहिए कि सास है और हम दोनों है ऐसा, या फिर मेरे सास ससुर का एज ज्यादा था और उनसे काम नहीं हो रहा था इसके लिए हमारी शादी जल्दी हुई। लेकिन उसने क्या बोला, इनके माँ बाप।
तो तुम्हारे हस्बैंड के माँ बाप तुम्हारे कुछ नहीं होते क्या? मतलब इसने अभी तक उनको अपनाया नहीं है ना, एक्सेप्ट नहीं किया उसने, इसके लिए ये अभी भी उसके हस्बैंड के माँ बाप ही है, इसके सास ससुर नहीं बने हैं अभी तक। अभी तक अटैच नहीं है। We take it as hypocrisy. मतलब रह रहे बहू की जैसा, लेकिन अभी तक भी बहू को मतलब सामने तो ये ऐसी बोलेंगी नहीं ना कि मेरे हस्बैंड की माँ, इधर आके पीछे क्या बोल रही है, इनकी माँ। घर में ये वाइफ क्या नाम से बुलाती होगी, इनके हस्बैंड ऐसा बोलती है क्या? जैसे हस्बैंड के सामने तो बता रही है ना। हाँ तो वही बता, लेकिन घर में क्या बोलती होगी? लेकिन हाँ मम्मी वही कुछ बोलती होगी। हाँ, और इधर आने के बाद में तो इनफैक्ट दोनों हिपोक्राइट है। इवन हस्बैंड इज हिपोक्राइट कि वो सुन ले रहा है ये बात। अंडरस्टूड? इवन हस्बैंड भी ये बात को यही तो मैं समझा रहा हूँ। देखो लाइकोपोडियम का रूब्रिक में पढ़ाया था, इम्पोटेंसी विथ हिज ओन वाइफ। लाइकोपोडियम जो होता है ना, अपने वाइफ के सामने इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब तू जो बोलेंगी वैसा भैया, इससे दिमाग नहीं लगाने का मामा, सारी दुनिया से लड़ लूंगा, तेरे आगे नहीं लड़ सकता। वो एक है ना, दुनिया क्या बोलते हैं, दुनिया में शेर, बीवी के आगे ढेर। ओके, इज लाइकोपोडियम। ओके बाबा, इसके मुंह नहीं लगते, ये जो भी है। हाँ तेरे सामने भाई तुम बोले वैसा, तुम्ही म्हणाल ती पूर्व दिशा, दैट इज लाइकोपोडियम। ज्यादा झंझट में नहीं पड़ने का, ऐसा हाथ जोड़ लेता बीवी के आगे कुछ नहीं चलता। मतलब पूरी दुनिया में देखो, अगेन आई एम टेलिंग व्हाट इज इरेक्शन। इरेक्शन मींस स्टैंडिंग टॉल with power to be able to penetrate and satisfy the person with your upmanship. It is the person who is erect is the dominant in the act of mating, in the act of coming together in a male and a female. So it's the dominant person who is supposed to have the erection, right? So here he is not. That is what we take it as. That is what we take. The rubric is very beautiful. It's given in male sexual. The rubric is erection wanting with his wife. Something erection wanting. So he's not able to stand tall, stand erect there. Do you understand? Okay. मैं कभी बताऊंगा ये rubric इंशाल्लाह, पर अभी थोड़ा सा इतना समझ लो। Pranita, very nice case and very nice understanding. And remember, the battle between lycopodium and pulsatilla wins. Battle between pulsatilla and phosphorus wins. Please remember, pulsatilla का बाप सिर्फ phosphorus बन सकता है, lycopodium तो कुछ नहीं, घंटा नहीं चलेगा pulsatilla के आगे. Okay. Okay, Nishu, let's thank Pranita and thank you very much. Thanks, Pranita. It was a wonderful case. Nice understanding between lycopodium husband, pulsatilla wife. Very beautifully shared rubrics and understanding. So thank you very much, and it was a very nice and interactive session. Thank you, Liaquat, for giving inputs about lycopodium. It's always a new learning every time. Though how much ever we study lycopodium, but these inputs are so important. Thank you. Thank you very much, everyone, for connecting today. Let's see you again next Thursday. Thank you. Thank you so much, madam. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Pranita. Thank you, Thank you, sir. Let Thank us you, wait Manisha for a moment. Let us wait for a moment all and pray for homeopathy and for our patients. Just in silence, let's pray for our patients that God gives us strength and healing powers in our medicines to heal the sick for which we are born, and we are the chosen ones by God because we are homeopaths, and with our hands, with the grace of God, more and more sick people should get healed. So we attract more cure and more patients turn towards homeopathy, and God gives us the strength to heal them. Let's call Amen. Amen. Thank you. God bless. Thank you, sir. Thank you. Nice session, Pranita. मस्त Thank you, sir.